Hello students, today we will do the sources of finance for a joint stock company. It is very important chapter because finance is the lifeblood of a company. Just like the blood works there for the body, it makes a body to survive and to perform its all activities. It's finance which keeps an organization alive and helps it to continue working. So we are doing what do we mean by sources of finance? Already we have done earlier. Now we will start with sources of finance for a joint stock company, right? Just what is finance? Finance is what is the money and the debt which your organization takes from outside from the shareholders to carry on its functions. Okay, that is your finance. Will do sources of finance for a joint stock company. So as we know, there are different sources of finance for a joint stock company: the equity shares, preference shares, profit of the previous years of the company which are undistributed. We call it to be retained earnings as well, debentures, debt taken from the financial institutions and banks, and other short-term sources of finance are there. So there are two parts, that is long-term finance and short-term finance. So what are the items there included in the long-term finance? Long-term finance includes your equity shares, preference shares, retained earnings, debentures, loans from commercial banks and loans from financial institutions. Okay. The short-term finance includes public deposits, commercial banks, right? Loan from commercial banks, trade credits, customers' advances, factoring, intercorporate deposits, and installments. Now, what are the sources of finance? Long-term and short-term funds can be further divided into two types of sources. Okay, and this is what own funds and borrowed funds. Or borrowed funds can be known as loan capital also. So long-term sources are two types: own funds and borrowed funds. Own funds. What are the own funds? Funds consisting of the equity share, preference shares, retained earnings. That is, own fund means the funds which is being generated by the owners. That is equity shares, preference shares, and what are the retained earnings, which are profits of the previous year which are not being distributed. Borrowed funds belongs to the creditors or lenders such as debentures, public deposits, trade credit, installment credit, and loans. Now, what is a share? Share क्या है? The capital of the company is divided into a number of equal parts known as share. कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, और वो जो इक्वल पार्ट जो है, एक यूनिट है जो उसको क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड बी shares. Therefore, it is a share in the share capital of a company. मतलब share मतलब हिस्सा, share capital में जो हिस्सा है वो आपकी share capital है. It indicates the interest of a shareholder in the assets and profits of the company. क्या दिखाता है कि shareholder का क्या interest है कंपनी के assets और कंपनी के profits में. It also consists of other rights given by the article of association. Each share has a distinct number एंड अ फेस वैल्यू. और हर शेयर का नंबर होता है और उसकी एक फेस वैल्यू होती है. दो तरह के शेयर्स हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो कभी इनकी वैल्यू बढ़ती है, कभी घटती है. दैट इज द मोटिव फॉर विच द शेयर होल्डर्स बाय द शेयर्स, स्पेसिफिकली द इक्विटी शेयर्स. नाउ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स or priority in the payment of dividend and the repayment of capital. They are called equity or ordinary shares. तो shares जो preference shares नहीं है, right, और जिनको कोई preferential rights नहीं है, priority नहीं है उनके dividend के payment में और उनकी capital की repayment में, वो shares कौन से कहलाते हैं? equity या ordinary shares कहलाते हैं. Equity shares are issued prior to other securities and repaid in the last. तो सभी सिक्योरिटी में सबसे पहले जो सिक्योरिटी इश्यू होती है
वो कौन सी है? इक्विटी शेयर। और सबसे लास्ट में जो पे होती है वो भी कौन है? इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर सबसे पहले इश्यू होता है और सबसे लास्ट में रिपे होता है। डिविडेंड ऑन सच शेयर्स is payable only when there are profits and the company declares dividend. कंपनी के पास प्रॉफिट है और कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि डिविडेंड देना है, तभी डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर्स को। They are paid dividend after paying dividend on preference shares. Thus, equity shareholders bear maximum risk, but they enjoy full voting right and control over the management of the company. They also entitled to all the residual profits of the company. क्या है? इनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंपनी की मीटिंग से डिसाइड होता है, राइट? और इनके प्रॉफिट रेशो कोई फिक्स नहीं होती है, राइट? कम भी मिल सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में मिल सकता है। सबको डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। सबसे मैक्सिमम रिस्क होता है इनके पास, बट इनके पास वोटिंग राइट है, इसका मतलब मैनेजमेंट में इनका पूरा कंट्रोल होता है। Features of equity shares क्या है? Equity shares are issued prior to preference shares and debentures. सबसे preference shares और debentures से पहले equity shares इशू करते हैं, यानी कि कंपनी की स्टार्टिंग कैपिटल कहाँ से अरेंज होती है? आपके equity shares से। Equity shares capital is required in the equity share capital is repaid in the last in the event of winding up of the company. Just check it. It is not repaired. It is repaid. Holders of equity shares generally enjoy voting rights. जो equity shares के holders हैं उनके पास voting right होता है. They are also entitled to the residual profits of the company. Equity shares carry no preferential rights in the payment of dividend. Dividend is only payable after it is proposed by the board of directors and approved by the equity shareholders in the annual general meeting of the company. एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर्स के? एडवांटेज को हम दो पॉइंट्स में, एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, दो पॉइंट से हम उसको डिवाइड करते हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं, कंपनी को क्या फायदे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या फायदे हैं, कंपनी को क्या नुकसान है और इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान है। पहले हम करते हैं एडवांटेज, फायदे। फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, नो बर्डन ऑन अर्निंग। कंपनी के लिए कोई बर्डन अर्निंग पे नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा कि डिविडेंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शेयर होल्डर जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी डिक्लेयर होता है, नहीं तो डिक्लेयर नहीं होता। Equity shares impose no burden on the company's resources because the dividend on such shares is payable only at the discretion of the management and subject to the availability of the adequate profit. मैनेजमेंट की मर्जी पर निर्भर करता है और साथ ही तब जबकि कंपनी के पास जो है प्रॉफिट्स हो। कंपनी इज अंडर नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको देना ही है, कोई फिक्स रेट पर देना है। देन इज परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज ओनली रिफंडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। देयरफॉर इक्विटी शेयर्स रिमेन्स विद द कंपनी फॉरएवर। तो आपकी सबसे पहले मिलती है, इनिशियल कैपिटल आपकी जो है अरेंज करती है और सबसे बाद में कंपनी, अगर कंपनी के वाइंडिंग अप पे आपको इसको रिपे करना होता है तो कंपनी के लिए एक परमानेंट कैपिटल का सोर्स है। नो चार्जेस ऑन एसेट। नो चार्जेस ऑन एसेट मतलब इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने के लिए कंपनी को कोई भी एसेट को प्लेज नहीं करना पड़ता, उनके एसेट्स फ्री रहते हैं, कोई भी उनको मॉर्गेज नहीं करना एसेट्स, तो एसेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन्स फ्री। Equity shares do not create any charges or mortgage on the assets of the company. The company is free to use its property for raising loans. Now, अब इसके फायदे इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वोटिंग राइट। As you know कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, यानी कि मैनेजमेंट पे उनका कंट्रोल होता है। Equity shares enjoy voting rights and controlling power over the company. Preemptive right. Preemptive right क्या होता है? कंपनी आपके, हम अभी करेंगे शेयर्स में राइट शेयर्स क्या होते हैं और कैसे इश्यू होते हैं, क्या क्या उसकी कंपनी के लिए ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी होती हैं आपके राइट शेयर्स को इश्यू करने के लिए। बट जो राइट शेयर्स जब कंपनी इश्यू करती है तो पहले जो उनको देना होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ऑलरेडी
those who have already purchased the shares. So equity shares have the primitive or primitive right to subscribe to the new shares, which is called to be right shares, which are issued by the company. तो जो primitive right है वो किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, कि अगर कंपनी कभी दोबारा नए शेयर्स बेच रही है तो उसको पहले किसको देगी, ऑफर करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को. Liability. The liability of the equity shareholders is limited to the face value of the share subscribed. कहाँ तक होती है? Up to the face value of the shares, और up to the unpaid value of the face value of the share. उन्होंने शेयर्स की वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उसमें कोई अनपेड अमाउंट रह गया तो उनकी लायबिलिटी उतनी तक ही है, या जो शेयर उन्होंने पे किया है वहीं तक उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती. कंपनी को नुकसान होता है उन्हें और पैसा नहीं देना होता. अब डिसएडवांटेज, नुकसान, इनको पहले कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. इक्विटी शेयर हमने कहा कि परमानेंट कैपिटल है, एक बार रेस कर ली तो लाइफ टाइम तक उसको वापस नहीं कर सकते. अगर कंपनी का एस्टिमेशन जो गलत हो जाता है कि कैपिटल कितनी चाहिए और वो ओवर कैपिटलाइज हो जाती, ज्यादा कैपिटल रेस कर लेती है, तो कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है. एंड यू नो चिल्ड्रन, ओवर कैपिटलाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग. में से कि पैसा ज्यादा आना बुरा नहीं है, अच्छा है, बट एक प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसा ज्यादा आना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वेस्टेज होगी, अननेसेसरी खर्चे होंगे, आप जो है इकोनॉमिकल वे में नहीं चलेंगे, रीजनेबली एक्शन नहीं लिए जाएंगे, लॉजिकल एक्शन नहीं ले जाएंगे, और एक्स्ट्रा में आपका फाइनेंस होने से क्या होगा, आपकी जो अर्निंग है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कम हो जाएगी. Rate of earning will be low. So danger of over capitalization. Capital raises through equity share is not refunded during the lifetime of the company. Mistakes in estimation of financial requirements may lead to over capitalization, resulting in lower rate of earnings and dividend. Dividend भी कम हो गया और rate of earning भी कम. No trading on equity. No trading on equity मतलब कि जब कंपनी सिर्फ शेयर से पैसा लेती है, ठीक है, तो उसको उतना बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाती, जितना बेनिफिट वो तब दे पाती है जब वो कोई फिक्स चार्ज जो है आपके रिसोर्सेज यूज करती है, जैसे कि डिबेंचर्स, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर्स. तो क्या उनको सिर्फ एक फिक्स देना होता है और रिटर्न बाकी का पैसा जो बचता है वो किसके लिए बच जाता है? प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. तो आपने कुछ पैसा जो है लोन से लिया, डिबेंचर से लिया, और कुछ पैसा आपने इक्विटी शेयर से लिया, और जो प्रॉफिट हुआ उसमें सिर्फ एक फिक्स्ड हिस्सा जाएगा आपका लोन और डिबेंचर्स को, और बाकी का हिस्सा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को. तो इससे क्या होता है, उनका जो बेनिफिट या डिविडेंड होता है वो बढ़ जाता है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. बट हियर यू जस्ट हैव टू डिस्क्राइब व्हेन द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज्ड through equity shares, the benefit of trading on equity is not available. Firstly, the cost of issuing equity share is higher. क्यों? क्योंकि जब इक्विटी शेयर रेज करना है तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म्स भी देने हैं, अंडरराइटिंग कमीशन भी देनी पड़ती है अंडरराइटर्स, क्योंकि उन्हें अपॉइंट करने होते हैं, ब्रोकरेज देनी पड़ती है आपके एजेंट्स को, ठीक है. तो दिस इज अ लॉट मेनी एक्सपेंसेस आर देयर. एक्सपेंस इशू के आपके इक्विटी शेयर्स के हाई हो जाते हैं. Cost of issuing equity shares is higher than the cost of issuing other type of securities, like underwriting commission, brokerage and other issue expenses are very high for equity shares. Now, अब जो इसके डिसएडवांटेज हैं इन्वेस्टर या शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है आपके? परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू. परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू का मतलब क्या है कि जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो कुछ हाथों में ही रह जाता है. वो कैसे? कि हमने कहा राइट शेयर्स किसको मिलेंगे? जो पहले ही शेयर जिन्होंने खरीद लिए हैं. पहले नए शेयर जब कंपनी इशू करेगी तो पहले उनसे पूछा जाएगा वो शेयर लेना चाहते हैं या नहीं. तो अगर उन्होंने शेयर खरीद लिए और दे बाय मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, तो क्या रहेगा कि जिसके पास मेजॉरिटी राइट है वही मैनेजमेंट में उसका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा. सो आपका जो है परपेचुएशन कंट्रोल का आपका कुछ हाथों में ही रह जाता है. Any new issue of equity shares has to be first offered to the existing shareholders in the form of right shares. As a result,
The company comes to be managed by a handful of persons. Ordinary and small shareholders remain owners in namesake. छोटे shareholders सिर्फ नाम के लिए ही ओनर रह जाते हैं. High risk. तो हाई रिस्क क्या है? This is what both words are being wrong. What is the dividend or capital? Okay, dividend or capital. The company dividend and refund of capital are both uncertain. Okay, और preference shares आपका कंपनी का डिविडेंड एंड कैपिटल का रिफंड दोनों ही अनसर्टन होता है. द राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड. प्राइस ऑफ शेयर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. और प्राइसेस जो है शेयर्स के फ्लक्चुएट होते रहते हैं जिससे कि रिस्क बढ़ा रहता है. अनहेल्दी स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन जो है यहाँ पर अनहेल्दी होता है. स्पेकुलेशन जो इक्विटी शेयर्स हैं जनरली वो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए खरीदे जाते हैं. एंड व्हाट इज स्पेकुलेटिव पर्पसेस? आपने देखा है शेयर मार्केट में शेयर्स के रेट कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं. तो कोई भी पर्सन जो है इक्विटी शेयर जब खरीदता है वो इस पर्पस से नहीं खरीदता है कि उसको अपने शेयर्स रखने हैं ताकि उसे हर साल में डिविडेंड मिल सके. वो किस लिए खरीदता है कि जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो उसको बेच देगा. ठीक है, और कम रेट होंगे तो खरीदेगा, फिर बढ़ेंगे तो बेचेगा. तो उससे क्या हो, उसे प्रॉफिट होगा और ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट. और ये वाला प्रॉफिट कैसा है? इसे स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स बोला जाता है. Okay? Very often there is unhealthy speculation in the prices of equity shares. Innocent and ignorant investors suffer as the directors and officers of the company may also indulge in speculation on the basis of inside knowledge about the company. ऐसे करते हैं क्योंकि कंपनी की नॉलेज, कंपनी के अंदर के कैसे चल रही है वर्किंग उसके बारे में पता है, उसका वो पूरा फायदा उठाते हैं डायरेक्टर और ऑफिसर्स. और इससे क्या है, अपना जो है गेन करते हैं. नॉर्मल जो आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं उससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है. सो टिल हियर ओनली आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर. Rest we will do in the parts. As you know children, I am not completing parts there in one go, so that small portions you can revise, you can understand, and your problems you can just give me or provide me in the comment box, so that those problems can be sorted out. Okay, so revise it. I hope you understood this chapter, this part of this equity shares. So thank you. See you in the next part, and like, share and subscribe the channel and keep doing your revision. Thank you very much.